So students, stoichiometry we do the calculations of the quantities of reactants and products. Okay, yes. So let me give you a simple example. You know what is sandwich? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in sandwich, how a sandwich is made? So we take two breads plus one cheese. Yes, one cheese. And it gives me one sandwich, right? Very practical thing. Agreed? Yes, sir. Now suppose I give you 7 breads so initially I am giving you 7 breads plus 3 cheese. Okay. So how many sandwich will you get? You will get some sandwiches. Yes. How many? Okay. Three. 3 sandwich. Good. So all the breads are used. No, sir. No, sir. One bread is there. One bread is left. Yes. That's the point here. So you have used only 6. So how to write this whole thing systematically? Okay. That's the point. So you can assume that these are the 7 moles of breads given to you. These are the 3 moles of cheese given to you. And to make one sandwich, 2 moles of bread and 1 moles of cheese is required. Yes. So what's the ratio? What's the ratio of, what do we call them? We call them stoichiometric coefficients. What do we call them? Stoichiometric coefficient. Yes. So we'll find the initial ratio So what's the initial ratio? 2:1. Okay. See, initial ratio is for the initial uh, number of breads and cheese that I have divided by this stoichiometric coefficient. Okay? Yes? So 7 divided by 2. Okay? 3 divided by 1. Agreed? Yes, sir. Now tell me which one of them is greater? Which one of them is smaller? So you can 7 by 2 is greater. see it's very small, it's 3.5, it's 3, right? You can also compare them by making the numerators or the denominators same. So multiplying them in such a way, like you want 2 here, so multiply and divide by 2. So 6 by 2, 7 by 2. Okay? So this one is this ratio is lesser. Yes. So the lesser ratio
is your limiting reagent. What it will be? Limiting reagent. Because it is limiting the product to be formed. It is limiting you to making sandwiches. Yes? Yes, sir. Yes, sir. सपोज आपके पास ब्रेड होते, फॉर एग्जाम्पल 8 ब्रेड्स मैं आपको दे देता सपोज, तो आपके यू कुड हैव मेड 4 सैंडविचेस, लेकिन नहीं बना पाए ना 4 सैंडविचेस। क्यों नहीं बना पाए? चीज ही नहीं था आपके पास, चीज खत्म हो गई, चीज सिर्फ 3 थे। गॉट इट और नॉट? Yes. तो ये जो लिमिटिंग रेशियो है, दिस इज द परफेक्ट रेशियो। क्या है ये? परफेक्ट रेशियो। बात समझ में आ गई? सो परफेक्ट सिनेरियो एंड दिस इज योर परफेक्ट रेशियो। तो एक रेशियो थी आपकी इनिशियल और एक रेशियो अब आपके पास क्या आ गई? परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो परफेक्ट रेशियो कहां से आई आपके पास? यहां से। ओके, तो परफेक्ट रेशियो क्या आई आपके पास? हम्म 3:1, यस। 6:2 और 3:1 एक ही बात है। तो परफेक्ट रेशियो क्या आई आपके पास? यहां लिख लिया आपने 3:1। गॉट इट स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। सबसे पहला स्टेप, इनिशियल मोल्स लिखे हमने, इनिशियल मोल्स आई, आप इसको NI भी लिख सकते हो, इनिशियल मोल्स NI, इनिशियल मोल्स। ओके, उसके बाद क्या किया आपने? सेकंड स्टेप में इनिशियल रेशियो निकाली, इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गॉट इट? और उसके बाद आपने जो रेशियो कम थी, इसका मतलब इट इज लिमिटिंग द प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड। ओके, तो उसने वो चीज कम थी ना, कम थी तो इसलिए उस बाकी चीजों के लिए, सपोज आपको ये सैंडविच है, सपोज आई टेक द एग्जांपल्स ऑफ, मान लो ये चेयर है, अब इसमें 4 लेग्स हैं, सपोज एक चेयर में लगती हैं जो, एक टेबल में लगती हैं जो, चलो टेबल लगा लो, चेयर लगा लो, टेबल 4 लेग्स लगती हैं, एक टेबल टॉप लगता है, तो सपोज 5 चीज लगती है। तो अब आपके पास लेग्स और टेबल टॉप, लेग्स आपके पास हैं 12, टेबल टॉप हैं 2, तो कितनी बनेंगी भाई ये टेबल्स आपकी? 2। तो कितनी लेग्स यूज होती है? 4 लेग्स, 2 टेबल टॉप, सॉरी लेट अस राइट इट प्रॉपरली, ऐसे ही लिखेंगे। रिएक्शन क्या आपकी? रिएक्शन क्या है? 4 legs plus 1 tabletop gives us 1 chair of Very good. So 4 legs plus 1 tabletop gives 1 table. Yes. ठीक है। अब आपके पास इनिशियली है कितना? कितना आपके पास? 12 लेग्स हैं और 2 टेबल टॉप हैं। ओके, तो ये गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे? इनिशियल रेशियो निकालेंगे। तो इनिशियल रेशियो क्या है? तो इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे कौन छोटा है, तो इसको आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 8/2, ये 12 है, तो छोटा कौन सा? ये स्मॉलर है। तो जो स्मॉलर है वो और प्रोडक्ट बनने ही नहीं देगा, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट।
और यहां से क्या मिल गई आपको? परफेक्ट रेशो। तो परफेक्ट जो रेशो है ये इनिशियल रेशो, ये परफेक्ट रेशो को यहां लिख लो। कितनी आई? 2/। गॉट इट? अब ये भी वही होनी चाहिए। ओके, तो ये तो थे इनिशियल मोल्स। तो उसी तरह परफेक्ट मोल्स कितने आएंगे बताओ मुझे? एक्स है मान लो, नहीं पता कितने आएंगे। इसके कितने आएंगे? ये तो परफेक्ट है, तो 2 ही सारे सारे यूज होने हैं। गॉट इट? तो परफेक्ट रेशियो क्या है आपके पास? एक्स, जैसे ये रेशियो थी आपकी ni डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी तरीके से यहां पर एन परफेक्ट में परफेक्ट चलेंगे, परफेक्ट रेशियो में परफेक्ट, इनिशियल रेशियो में इनिशियल, नीचे वही स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। x/4 इज इक्वल टू 2/1। और यहां पर टेबल कितनी बनी? तो ये है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है सब यूज हो जाएंगे। और ये है इनिशियल। और यहां आप लिख सकते हो रिमेनिंग। क्या लिख सकते हो? रिमेनिंग माइनस कर दो इनिशियल में से, ये माइनस कर दो। तो स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू क्या आई आपकी? 2 इंटू 4 दैट इज 8। यानी कि 8 मोल्स जो है आपके परफेक्ट सिनेरियो में यूज होंगे। x इक्वल्स टू 8 आ गया। गॉट इट और नॉट? तो 12 लैक्स आपके पास थी, 8 यूज हो गई, बची कितनी लैक्स? 4। 2 थी, 2 की 2 यूज होगी। लिमिटिंग में तो सारा यूज होगा, 0 बचेगा। अब y की बात करते हैं। तो y अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो y अपॉन 1, तो वही परफेक्ट रेशियो कितनी है आपके पास? 2/1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1 इज इक्वल टू y अपॉन 1। तो कितना है स्टूडेंट्स? 2 है ना? y की वैल्यू 2 आ गई ना? तो y इज इक्वल टू 2। तो यानी कि आपकी 2 टेबल्स बन गई। सॉरी 2 टेबल्स बन गई आपकी। बस इसमें कुछ गिवन का या उसका कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको ऐसे कि ऐसे हैंडल करना है। ओके, गॉट इट? चलो, Yes. तो इसी तरीके से अब यहां आ जाओ। 2 चीजें होंगी, इनिशियल ये रेशो आपने लिख ली, उसके बाद आपके पास क्या आ गई? परफेक्ट रेशियो। तो स्टेप बाय स्टेप चले, बिल्कुल स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं करनी है। फर्स्ट स्टेप ni लिखा, ये बिल्कुल गिवन होगा। सेकंड स्टेप में इनिशियल रेशियो आपने निकाल ली। थर्ड स्टेप में ग्रेटर देन स्मॉलर निकाल के आपने निकाल लिया लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। और यहां से क्या मिल गया आपको? परफेक्ट रेशियो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में ये जो परफेक्ट रेशियो आपको मिली है यहां से, दिस इज योर परफेक्ट रेशियो एंड दिस चीज इज योर लिमिटिंग रीजेंट। तो जो परफेक्ट रेशियो आपको मिली है, लेकिन आपको ध्यान है इनिशियल के बाद हमें परफेक्ट मोल्स लिखने हैं। और उसके बाद हम निकालेंगे कितने मोल्स बच गए एक्स्ट्रा, है ना? और अब और हम उसके बाद क्या लिखेंगे? परफेक्ट रेशियो। क्या लिखेंगे? Perfect ratio. और परफेक्ट रेशियो क्या होगी आपकी बताओ? परफेक्ट मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सारे के सारे क्वेश्चन में यही होगा, सेम टू सेम। बस तो एक एल्गोरिदम है, समझ लो, एक प्रोग्राम है। आपको ऐसे कैसे करना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. बस ये है कि हम फार्मूला याद नहीं कर रहे, हम कुछ भी याद नहीं कर रहे, हम तो एक कहानी जो है वो हमें पता है। ब्रेड और चीज की कहानी याद रख लो, लेग्स और टेबल टॉप की कहानी याद रख लो कि टेबल बनी है। कोई भी एक स्टोरी ध्यान रख लो बस, और उससे अपना फटाफट आपको दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। ओके, चलिए अब यहां आपके जो मोस्ट हमने डिस्कस किया था कि मान लो हमने ये यहां पर, अब आपके पास परफेक्ट रेशियो क्या आ गई? 3:1। तो यहां परफेक्ट रेशियो लिख लो। तो ये हो गया आपका परफेक्ट रेशियो। आपने कहां लिखी? सीधा यहां से यहां लिख दी। तो ये क्या आ गया आपका? स्टेप नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात सबको? स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. लिखते जाओ। ये स्टेप 4 हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, इसको आप मान लो आपके परफेक्ट सिनेरियो में ये कितने यूज होंगे?
तो स्टेप नंबर 4 में 2 चीज लिखोगे आप, परफेक्ट भी मिल जाएगा आपको कि भाई टोटल पर जितने थे लिमिटिंग रिएजेंट में इनिशियल सारे सारे यूज हो गए। तो परफेक्ट का मतलब है, परफेक्ट सिनेरियो समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? परफेक्ट सिनेरियो में क्या होगा? परफेक्ट मोल्स। तो परफेक्ट सिनेरियो है जितने हैं वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं यहां पर, जो परफेक्टली जो यूज होंगे। तो मान लो हमें नहीं पता कितने यूज होंगे, मान लो x यूज होंगे, तो बताओ ये आपकी परफेक्ट रेशियो है, स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट आपको पता ही है वो कितना है 2। तो बस सैंडविच कितने बने? मान लो y बने परफेक्ट सिनेरियो में। तो परफेक्ट सिनेरियो में आप यहां लिखेंगे ये जो मैंने बताया कि ये आपने लिख लिया 4th स्टेप में। उसके बाद 5th स्टेप में आप लिखेंगे ये 2 वेरिएबल्स। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. और उसके बाद फिर स्टेप नंबर 6 x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। बस इतना आसान सी बात है। तो एक स्टोरी टाइप है बिल्कुल। हम इसके 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, याद ही हो जाएगा हमें। तो हालांकि इसके लिए मैं फार्मूले बता सकता हूं, मैं आपको कह रहा था कई दिन से कि भाई कुछ ना कुछ मैं सोच रहा हूं कि बेस्ट क्या चीज हो। तो बाकी कंसेप्ट के लिए भी बेस्ट कुछ तैयार कर रखा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहां से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आई? 6। 6. तो ये आपका स्टेप नंबर 6 में आपने x और y लिख लिया, और ये आपका स्टेप नंबर 7 है, x की वैल्यू आपने निकाल ली, और x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू भी निकाल ली आपने। 3/1 इज इक्वल टू y/1, तो y की वैल्यू भी आ गई आपकी कितनी? y/1 है, 3 into 1 इज 3, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी? 3। तो ये परफेक्ट सिनेरियो आपके पास आ गया। कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो ये होगा आपका स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 7 में वैल्यू यहां निकाली और 8 में यहां लिख दी 6 and 3। अब आप स्टेप नंबर 9 में एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं भाई कितना बचा। लिमिटिंग रिएजेंट तो बचेगा नहीं, इसका कुछ था नहीं आपके पास, ये तो प्रोडक्ट है तो इसका तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट है, तो इसका तो जितना है सारा सारा बन गया आपका। बचते रिएक्टेंट्स में से हैं। और आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई आपके पास कितनी क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट को ऐड कर दो किसमें? इसके बचे हुए। तो इसका कितना बचा? आपके पास 6 थे, 8 थे, 8 में 6 यूज हो गए। इनिशियली मैंने आपको 8 ब्रेड दिए थे, 8 में से 6 आपने यूज करके 6 ब्रेड यूज किए, 3 चीज यूज की और 3 सैंडविच बना दिए। तो ये परफेक्ट सिनेरियो है या नहीं है, मुझे ये बताओ बस। परफेक्ट सिनेरियो क्या है? 6 ब्रेड, 3 चीज, 3 सैंडविच। यस, ये दोनों मिला के 3 सैंडविच बना रहे। तो यहां कितने बचे एक्स्ट्रा? 8 - 6 2। तो ये एक्स्ट्रा लिख देंगे बस। तो स्टूडेंट्स ये हमें करना है। ओके, चलिए अब इसके ऊपर अब हम सीख गए ये, अब हम इसको यूज करेंगे। यूज करें? यस स्टूडेंट्स, रेडी? Yes, sir. चलो तो अब हम इसको एक अच्छे से क्वेश्चन में यूज करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा होगा, हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1.5, पेज नंबर 19। प्रॉब्लम क्या है? N2 plus H2 gives NH3। ये रिएक्शन हो गई हमारी। आप ऐसे ही समझ लिया करो, यहां लिख लिया करो ब्रेड ऊपर ज्यादा दिक्कत है तो यहां लिख लिया करो चीज, और यहां लिख लिया करो सैंडविच। अब ये अलग तरह का ब्रेड चीज सैंडविच है, समझ गए? गॉट इट? अब इसमें कितने, इसमें क्या है, अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। इक्वेशन को बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन 6, अब बैलेंस हो गई। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसी चीज बन रही है कि भाई ये 1 यूज हो रहा है और ये 3, और मिलके बना कितने रहे? ये 1 इसका चाहिए, 2 इसके मोल चाहिए, तो 2 मोल इसके बनेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल अमोनिया। क्लियर हो गई बात?
Yes. अब हमारा है कि भाई इसका 50 केजी दे रखा है, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं अभी तो हम। ये दे रखा है 10 केजी, बहुत बढ़िया। और ये दे रखा है कितना, कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमें निकालना, ठीक है ना। और ये भी हमें निकालना है कि भाई कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी हमें निकालना है कि वो कितना बचेगा, सब निकाल देंगे हम, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट्स आपका, इनिशियल। देखो सारी कैलकुलेशंस देखो, हम जो आपको पता है हम मोल की फॉर्म में कह सकते हैं, हम मोलिक्यूल्स की फॉर्म में कह सकते हैं, हम ग्राम्स की फॉर्म में कह सकते हैं, 3 तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे मोल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, मोल्स। Moles. मोल्स में कैलकुलेट करेंगे भाई। इनिशियल मोल्स कितने हैं ये बताओ बस। मोल से मतलब है मेरे को या तो डायरेक्ट मोल दे दो, नहीं दोगे तो मैं बदल लूंगा। और फार्मूला मुझे पता है, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। क्या है, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, मोलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना है भाई इसका 50 केजी। अच्छा इसको ना आप ऐसा करो, इसको ग्राम ही मानो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। समझ गए, बात समझे कुछ भाई? Yes. बात तो एक ही है, पहले ग्राम में कैलकुलेट कर लो, हम बड़ी कहानी हमें नहीं करनी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 ग्राम आपका मान लीजिए आपको दे दिया नाइट्रोजन, तो कितने मोल है भाई, हमें मोल से मतलब है, ग्राम है तो बदल लेंगे मोल में, हमें पता है मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन का मोलर मास कितना है, और नाइट्रोजन का सॉरी कितना है मोलर मास, याद होनी चाहिए, लिख लो नहीं तो 14 टू द, तो एक मोल का हो गया 28 ग्राम्स। बना लिया आपने। तो आपके पास जो रेशो है, इनिशियल रेशो, वो कैसे आएगी, इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तीनों। तो आपकी रेशो क्या बनी यहां पर, 50/28 डिवाइडेड बाय 1। चलो बाकी कैलकुलेशंस नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, 50/28, ठीक है कि नहीं, ये बनी ना आपकी रेशो, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब इसके मोल्स देखो भाई कितने, इसके मोल्स कितने हैं, 10 ग्राम्स, वही सेम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हाइड्रोजन का, एक का कितना है 2, तो 2 का कितना होगा 2। बस ये ध्यान रखना है कि हम इसका मोलर मास ले रहे हैं, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्यों नहीं है लेना देना, क्यों, क्योंकि हम तो 10 ग्राम्स में निकाल रहे हैं कितने मोल्स हैं भाई, हम तो मोल्स में कैलकुलेशन करेंगे, हम तो ये मान रहे हैं इनिशियल मोल्स कितने गिवन है। तो इनिशियल मोल्स कितने गिवन है, इसका इससे क्या लेना देना, 3213 से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। Yes. तो हम है ना, ये नहीं है कि भाई ऐसे टेबल, हम लॉजिकली काम कर रहे हैं, मतलब यहां पर कि भाई कितने आपने मुझे इसके मोल दिए, कितने ब्रेड्स दिए, कितने चीज दिए, सैंडविच बनाऊंगा। तो यहां क्या है कि भाई जैसे अब आप चावल बनाते हैं, तो मम्मी ने कहा 1 कटोरी राइस और 3 कटोरी जो है वो वाटर, तो राइस बन जाएगा अपना, इससे जो है वो 1 बाउल राइस बनेगा, बन गया ना सिनेरियो। तो 1 कटोरी, 1 बाउल राइस, 1 बाउल वाटर और 1 बिग बाउल राइस। रेसिपी तैयार है अपनी, ठीक है कि नहीं, ओके चलो। चलो केमिस्ट्री तो थोड़ा मतलब किचन में केमिकल्स और ये सब सारी चीजें यूज होती हैं, तो कलर सब। तो स्टूडेंट्स कितने मोल्स बने इसके, 10/2, तो कितने बन गए भाई 5 मोल्स। इसको तो हम 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो हमें हम क्यों इसमें काटा पिटी करें। चलिए तो परफेक्ट सिनेरियो में, सॉरी इनिशियल रेशियो में परफेक्ट सिनेरियो भी निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या बनेगी
इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3। तो आप बताओ ये है 50/28, ये 5/3, तो करो जल्दी से 1 सेकंड में दोनों को इक्वल। ये 10 और ये 10, तो ये क्या बन गया 50/30, ये 50/20। बताओ कौन सा छोटा है? मोर यू डिवाइड लेस यू गेट। ज्यादा लोगों में डिवाइड करोगे तो कम मिलेगा आपको, 90% सर। तो यहां कम मिलेगा आपको क्योंकि 30 से डिवाइड कर रहे हो। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये था आपका स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपने यहां इनिशियल रेशियो निकाली, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आपने डिसाइड किया कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो 1 सेकंड में आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाता है, और यही हो गई आपकी परफेक्ट रेशियो। मजा आ गया बिल्कुल नहीं? चलिए, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब आपको पता है कि आपको इनिशियल मोल्स लिखने हैं, उसके बाद परफेक्ट मोल्स लिखने हैं, और बैलेंस लिखना है। एक्स्ट्रा मोल्स कितने हैं, तीनों चीजें लिखनी है। हाँ या ना? यस सर। तो ये इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन उससे पहले अब ये परफेक्ट मोल्स तो आ गए, तो इसके लिए परफेक्ट रेशियो भी तो लिखोगे। क्या है परफेक्ट रेशियो? 5:3। परफेक्ट मोल्स क्या हैं? कितने मोल्स? 5। जितने इनिशियल मोल थे लिमिटिंग रेजेंट के सारे यूज हो जाएंगे। लिमिटिंग रेजेंट है ना ये। यस सर। यस सर। जितने मोल्स इसके चाहिए, कम मोल्स अवेलेबल, सारे यूज हो जाएंगे। इसलिए तो जो यहां लिखा है वही का वही, जो इसका इनिशियल है लिमिटिंग रेजेंट का, वही यहां आ जाएगा। और जो इसकी रेशो है, क्या थी रेशो? 10:10 तो हमने कंपेयर करने के लिए था। रेशो तो 5:3 है, तो वही रेशो एज इट इज यहां आ जाएगी। सॉरी, बताओ, अब आप बताओ इसमें कोई समस्या है कुछ किसी प्रकार की? हाँ सर। हाँ सर। यहां आपने कैलकुलेट कर दिया, फोर्थ स्टेप में आपने इनको लिख दिया। देखो कितनी आसान कहानी है। अब आपको बताया कि भाई परफेक्ट में कितने होंगे, इसको एक्स मान लो, आपको तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना आपको, जिससे इसको इससे माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे। एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस सर। यस सर। तो भाई एक्स अपॉन, ये परफेक्ट रेशियो है, तो परफेक्ट सिनेरियो में, परफेक्ट रेशियो है तो सब इक्वल है। जब इनिशियल रेशियोज थी तो सारी इक्वल नहीं थी, लेकिन परफेक्ट सिनेरियो में क्या होगा? परफेक्ट सिनेरियो में सारी रेशियोज क्या होंगी? इक्वल होंगी। यस, तो परफेक्ट सिनेरियो, परफेक्ट सिनेरियो क्या है? परफेक्ट सिनेरियो में सारी रेशियोज क्या होंगी? इक्वल। तो ये मान लो इसके जो परफेक्ट मोल्स यानी कि जितने यूज होंगे वो आगे एक्स, हमारे एक्स यूज होंगे भाई इसके। तो एक्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो एक्स अपॉन 1 कर दो। उसी तरीके से यहां y कितना बनेगा भाई? x कितना बनेगा? y। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, y लिख लिया आपने। तो स्टेप नंबर 5 में आप ये लिख लेते हैं कि x और y जो वेरिएबल्स हैं आपके। अब पता नहीं मुझे ऊपर मैंने स्टेप 5 किसको लिया, 4 किसको लिया, लेकिन यहां पर ये आपका स्टेप 5 हो गया। x और y की ये लिख लिया आपने। स्टेप नंबर 6, अब कैलकुलेट करो x और y की वैल्यू। यहां ये परफेक्ट सिनेरियो लिख लिया, अब कैलकुलेट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/3 आ गया, बात खत्म। और y कितना है आपका? इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 2। तो कितना है स्टूडेंट्स? y इज इक्वल्स टू, बताओ, 5^10। बहुत बढ़िया, बस बन गई बात आपकी। तो ये सारे क्या रहे हैं? मोल्स हैं। ये सारे क्या हैं? मोल्स। तो y आ गया 10/3 और x आ गया 5/3। तो इतने आपके यूज हो गए। ओके, तो बचे कितने? थे कितने आपके पास? 50/28, इतने थे ना?
Yes, sir. तो आपके पास थे 50/28 माइनस 5.3। बताओ जल्दी से मुझे कितना आया ये, बताओ जल्दी से। इसका तो एलसीएम भी पूरा लेना पड़ेगा आपको। तो इसका तरीका क्या है सर, इसको आप ऐसा करो, जब भी ये सिचुएशन है तो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और -5.3 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 28 से। ओके, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा करते हैं, तो ये कितना बना भाई, 150 एंड 24, 174 बना, माइनस 28 इंटू 5, 140 बना। अरे हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. यही कैलकुलेशन होंगी या कुछ और होगा। डिवाइडेड बाय, अगर ये 30 होता, 30 30 90, लेकिन 2 कम है तो 6 कम कर दो, 90 से 6 कम 84। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो कितना आएगा बताओ चलो। तो अगली बार से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। समझ गए होगे ना बात 150 को। minus हाँ, तो ये हमने किया 50, इनिशियल था 58/23, यूज हुआ मोल्स 5/3, तो कितना आया भैया। excuse me, sir. हाँ, गलत कर दिया। Yes, sir. हाँ। 58/28 नहीं है, 50/28. हाँ, वही मैं सोच रहा था कि ये कुछ ना कुछ, मैं बार बार बोल भी रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ यही मिल गई हमारी, 50/28। तो चलिए 50/28 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 150. तो यहाँ कितना आ गया 10/84। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 150 और इधर से 28 इंटू 3। तो आप यहीं से देख लो 10 कम आ रहा है, अपने आप ही पता लग रहा है, क्योंकि ये समझ रहे हैं बात। तो ये 30 इंटू 5 होता तो 150 होता, तो 10 कम हो गए। चलिए, तो स्टूडेंट्स इतने मोल्स आपके पास आ गए एक्स्ट्रा। ओके, Yes, sir. और आप मोल्स को, जो फार्मूला है आपने पहले भी लिखा है कि भाई Ni इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसको हम लिखते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो आपको अब जो है, अगर निकालना है मास, तो फिर वापस Ni इंटू मोलिकुलर मास, यस और नो। मोल्स में मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा ना भाई। एक मोल्स में कितना अवेलेबल है, ये m मोलिकुलर मास, तो n में कितना होगा मास, मल्टीप्लाई कर दो। यस, Yes, sir. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके मोलर मास से। मोलर मास कितना है इसका 28, 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम्स आ जाएंगे। कितना नाइट्रोजन बचा भाई, ये तो 0 बचेगा ना, ये तो बचेगा ही नहीं। 5 थे, 5 का, तो ये कितना बचा बताओ, इंटू 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 नीचे फिर कटेगा ना 84, या नहीं। अरे ये 28 इंटू 3 तो है, तो 10/3 आ गया ना। तो कितना बचा 3.33। अब ग्राम ले रहे थे ना, अब ग्राम या किलोग्राम लिख दो, बस आ गया आंसर। तो ये बच गया 3.33 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. अब इसको भी ऐसे ही करो, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके पता लग जाएगा ये कितना यूज हुआ। कर लो, दोनों का सम 1 आएगा, और मतलब टोटल 50 kg आएगा। तो या तो इसको 50 से माइनस करो तो अपने आप ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो सब एक ही चीज है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 28 से। अरे भाई इसको मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन मास आ जाएगा ना। Yes, sir. तो कितना आया, करो इसको मल्टीप्लाई, 140/3। तो देखो 10/3 है 140/3, तो टोटल हो गया तो 50 आ गया ना, 10/150/3। यस और नो। तो ये कितना बना आपका, इसी से 46.66 किलोग्राम, और 46.67 लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा।
46.67 किलोग्राम। डन स्टूडेंट्स, इतना यूज हो गया, इतना बच गया। पाई पाई का हिसाब निकाल दिया। Yes, sir. अब ये कितना बना, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। यस, इसका मोलर मास कितना है NH3 का? 17. वेरी गुड। 14 प्लस 3 इंटू 1 डेट इज 17। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बना? 170 अपॉन 3। अब इसको आप ग्राम लिख दो, जो सब वो किलोग्राम लिख रहे थे, इसको भी क्या लिख दो? किलोग्राम। यहां किलोग्राम लिख दो। तो इसको करेंगे तो कितना बनेगा, देखो बताओ, करो 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 करो। 56.66. हाँ, 56.66. 56.6667 लिख सकते हो Yes. किलोग्राम। अब आप पहला रूल बताओ, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट्स का मास कितना है? कितना यूज हो रहा है रिएक्टेंट? 46.67 प्लस लिमिटिंग रिएजेंट सारा का सारा 10 किलोग्राम्स। तो कितना बना? ये बना। बन गई बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes, sir. तो अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन आए सब फटाफट कर देंगे हम। कोई भी रिएक्शन आ जाए हमारे पास, मिनटों में निकाल देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो आराम से, तसल्ली से। अब आपका काम है, जितने क्वेश्चन बुक में हैं, जो आपको मिले सब इस तरीके से ट्राई कर डालो। ये हाईएस्ट लेवल है, मतलब उसके अलावा जो बाकी तो क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल आसान, उसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दूं। एक तो अभी कर सकते हैं आप, करेंगे? Yes. चलो, Yes, sir. पहले इसको आराम से नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर लास्ट स्टेप में हमने जितने भी मोल्स गिवन थे उनको मास में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, देखो बात सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। यहां नोट लिखो सबसे पहले। अगर मास गिवन है तो मोल्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, और वापस आंसर फिर मास में लिखना है। तो मोल्स आएंगे तो उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो? मास से। तो देखो कितनी बढ़िया बात, आपने जिससे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, वापस वहीं का वहीं पहुंच जाओगे। नहीं, कितनी सिंपल बात है ये। कैलकुलेशन सारी यहां होंगी। ये देखो, ये है मजे की बात। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जितना पूछोगे उतना सीखोगे, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स बात समझ आई? अगर सीधे एन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स देगा, तो यहां से कहानी शुरू हो गई, फिर ये पीछे कहानी का कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जैसे अब एक इजी क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए, इजी। इजी का मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम इससे पहले वाली 1.4 जो अभी हमने की है, कि CH4 प्लस O2 combustion of methane gives you water plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, वो पहले लिख लो। ओके, तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें प्रोड्यूस करनी है। क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी है आफ्टर कंबशन। तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशंस किस में होनी है? मोल्स में।
तो यहां तो जो है आपको CH4 के बताने में कितने मोल जो है वो करने। तो अब देखो इसके लिए इतना ताम झाम उठाने की जरूरत नहीं है आपको, बैलेंस कर लो पहले। ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो ऑब्वियस 2 तो होगी नहीं, 4 करनी पड़ेगी, और इधर हाइड्रोजन 4 है तो ये 2 4 हो गए। चलो अब बैलेंस हो गया। ये आपको निकालना है, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है, तो सीधी सी बात है भाई इसके कितने मोल्स होंगे, कैलकुलेशंस तो मोल्स में होगी ना, तो निकाल लो मोल्स इसके कितने मोल्स आए, कर दो इसके मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ कितना गिवन मास 22, मोलर कितना है याद हो जाना चाहिए, 44 है, कितना है 44 तो कितना आया भाई हाफ मोल। 1/2 तो एक मोल देता है, तो हाफ मोल हाफ देगा। yes अब हाफ मोल आ गए तो फिर वही बात, अब पहले मास था तो मोल्स निकाले, मोल्स आ गए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही मोलर मास से, है कि नहीं। yes sir तो अब इसका मोलर मास बताओ कितना होता है 16 16। तो यहां स्टेप नंबर ये था, इसका n निकाल लिया, और उससे फिर स्टेप नंबर 2 में इसका निकाल दिया, क्योंकि ये 1 का 1 है, सीधा 16 होता है इसका मास। तो कितना आ गया 8 ग्राम, यानी कि आपको 8 ग्राम मीथेन चाहिए। ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी मिलेगी आपको, ऑक्सीजन एयर में कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 ग्राम मीथेन बर्न करोगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बात समझ आ गई। तो अब एक बात बताओ, आपको जो है मतलब एक सैनिक के साथ लड़ाई, वो तो एक जो है वो मतलब एक आर्मी, मतलब एक दुश्मन, एक दुश्मन का एक सैनिक है, तो उसके लिए आप अपनी पूरी जो है मतलब तोप लेकर आओगे क्या, बफोर्स, उसको तो गन से शूट कर दोगे, है कि नहीं। yes बात समझ आई कुछ। yes sir लेकिन हमने ऊपर बफोर्स चलानी सीख ली इतनी मेहनत करके, और गोली चलाना हो तो वो कुछ है नहीं उसमें, तो फिर गोली चलाने में तो कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, yes sir बन जाएगी बात। yes sir तो एक और जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी इसी पे ट्राई करो, मतलब जितने आपको, जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.4 है पेज 22 पे, 1.3 है पेज 18 पे, 1.7 है पेज 22 पे, इसी पैटर्न पे जितने क्वेश्चन मिले सब ट्राई कर डालो, ठीक है। दोनों का तरीका बता दिया, इजी मिले तो ऐसे कर देना, और उसके अलावा बाकी मिले तो ऊपर आपके पास सारी कैलकुलेशन है। इज दिस क्लियर। yes sir तो जो क्वेश्चन मिले एग्जाम्पलर के, इसके, और मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे भी देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो 4Fe बैलेंस रिएक्शन ही दे देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन है ये आयरन का, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर दी, कंबशन बोल दो। यहाँ पे कंबशन तो क्या बोलेंगे, फ्यूल हो तो कंबशन बोले, कार्बन ये मीथेन तो फ्यूल है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मिलती है हमें, समझ में, यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहाँ मिल नहीं रही, तो इट इज नॉट ए फ्यूल। फ्यूल जब होगा जब यहाँ सरप्लस एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंबशन, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। okay sir तो ये आगे रिएक्शन Fe2O3, ठीक है, बैलेंस भी हो गई। अब आपको गिवन है 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is used to burn 0.15 मोल ऑफ आयरन। आगे बात समझ, कोई बात नहीं, एक के मोल दे दिए, एक के ग्राम दे दिए, ये तो और अच्छी बात होगी, मोल मिल गया आपको। अब इस ग्राम के मोल बना दो, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस तो मोल में ही करनी है। yes sir yes sir चलो इसको यहीं कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 5-7 मिनट लगेंगे, करेंगे यहीं पर ही, यहीं कर लो। हाँ होमवर्क क्या है, यही यही हो जाएगा अपना होमवर्क। तो
तो ये आपको दे दिया। अब निकालना क्या है, कितना मास Fe2O3 का प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसके ग्राम्स निकालने हैं आपको, इसके कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हुए। ये इतने आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको, बताओ। हाँ, और अगर Fe और O दोनों में से कोई बचा तो कितना बचा, बस सारी कहानी निकालनी है। चलो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये फटाफट नोटबुक में लिख रखा है ना प्रोसेस सारा का सारा। चलो मैं आपको कितना टाइम दूं, जो प्रोसेस बताओ उसे ट्राई करो। चलो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने लगे करो ट्राई, तभी सीखोगे। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा 5 मिनट बाद। जो तरीका बताया उसी से करो। सबसे पहले बता देता हूं, लिखना क्या है। सबसे पहले इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल से इनिशियल रेशियो, इनिशियल रेशियो Ni अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये इनिशियल रेशियो आ गई। इनिशियल रेशियो में जो छोटा मिले दोनों में से कंपेयर कर लेना। यहां पे जो छोटा होगा वहां से आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट रेशियो मिल जाएगी, वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। परफेक्ट रेशियो मिल गई तो आपके पास यहां पर परफेक्ट मोल्स आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगी, परफेक्ट रेशियो, बस। और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे। इज दिस क्लियर, एक्स्ट्रा मोल्स, ये लो। तो ये निकालो और यहां से सीधा आपको उसके मोल्स भी पता लग जाएंगे और परफेक्ट रेशियो पता लग जाएगी। तो जल्दी से बताओ मुझे फटाफट कि कितने मोल्स आयरन के हैं। Ni बताओ सबसे पहले, तो कितने कितने दे रखे हैं, जल्दी से। चलो स्टेप बाय स्टेप करो, चलो करो करो फटाफट करो। टीसीएस नाम की क्या चीज है? हाँ? टीसीएस नाम की क्या चीज है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा टीसीएस, ये टैक्स कटता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाँ, ये मत कटने दियो, 7 लाख से ऊपर कटेगा, ये कटवा दिया। कटवाया नहीं है अभी, तो कुछ भी नहीं होगा। पेमेंट जब तक नहीं होती जब तक कुछ नहीं कटने वाला। तो कम पेमेंट करना, 7 लाख से कम कर तो नहीं मैं तो कटेगा। 6,93 कर है, उसमें भी मांग रहे हैं। तो नहीं, 7 लाख पे कटता। ये 6,93 में देख लो, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, मैं गलत है तो हाँ 693 675 कर लो। मैं 650 कर दूंगा। हाँ, और ये देखो मतलब नहीं कर रहा, अकाउंट बाद में दे रहे हैं। मतलब आप इस वाले बैंक से जुड़ सकते हैं, कोऑपरेटिव से। अच्छा देखो, देखो इन्होंने क्या तमाशा कर है। पहले इतने से नेट बैंक से तो बैंक की डिटेल्स दे दी कि ये ट्रांसफर है, ऐसे क्या अरे ये तो हो जाएगा, ये आईएफएससी कोड दे दिया उन्होंने। हाँ, अब तो आप पता चला ना, ऑनलाइन रिकवर नहीं, इसका इसके थ्रू होगा। और ये खुद इसके थ्रू करते हुए दे रहे हैं इससे, तो आप उसके हिसाब से करो। नहीं, अगर मैं आपकी ये वाली अगर मैं पेमेंट कंटिन्यू नहीं करूँगा तो वैसे ही कंटिन्यू करते तो मैं नई इनिशिएट कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। दादा का जैसे करा था, हाँ वो मैंने कंटिन्यू नहीं, जैसे मैं दादा से डेबिट कार्ड से करा था, हाँ मैं कंटिन्यू नहीं करता तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा 3 दिन में कैंसिल होगा, मैं नई पेमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। इससे एक लिंक बन जाता है, मैं उस लिंक पे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा तो चलो हम 10 मिनट बाद डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एसी ने बंद कर दे बेटा, एसी बंद कर दे, बीमार हो जाऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, बन गई बात। हाँ बेटा, इनिशियल मोल आयरन के तो दे ही रखे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑक्सीजन के निकाल लो, कितने आएंगे, 4.8 ग्राम्स कर दो डिवाइड मोलिकुलर मास से। कितना होता है मोलिकुलर मास, 32। बहुत बढ़िया। तो कितना आया भाई ये, 0.15। अरे 0.15 3/20। हाँ, तो ये तो तुम्हारी तो जो है वो इनिशियल मोल्स दोनों के सेम हो गए, कोई बात नहीं। अब उसके बाद रेशो निकालो, इनिशियल रेशो क्या बनी आपकी,
तो ये कितना है 0.15। इसको भी वैसे लिखना तो उसी टर्म्स में चाहिए जैसे फ्रैक्शन, क्योंकि उससे फ्रैक्शन फ्रैक्शन कंपेयर करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, डेट्स योर चॉइस। वैसे निकालना चाहो तो इसको 100 से कर दो और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 बाय, अरे करने जरूरत नहीं थी, 3/20, 3/20 ही था एक्चुअली, तो ठीक है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 3/20 डिवाइडेड बाय 4, ओके, और ये कितना बनेगा 3/20 डिवाइडेड बाय 3। इसको कम से डिवाइड कर रहा हूं, इसको ज्यादा डिवाइड कर रहा हूं, तो अपने आप ही देखो कितना इजी है ये निकालना, हाँ या ना। यस सर। तो ज्यादा कैलकुलेशन में मत घुसा करो, लॉजिकली किया करो हर चीज को। तो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, क्या, आयरन, एंड दिस इज योर परफेक्ट रेशियो। आ गई ना, कितनी आई 3/80 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, 3/80 यही आएगी। तो स्टूडेंट्स मोल्स कितने यूज होंगे इसके परफेक्टली 3/20, और रेशो क्या आई आपकी 3/80, यस और नो। परफेक्ट सिनेरियो में इसके सारे यूज हो गए ना आयरन के, तो ऑक्सीजन कितने यूज होंगे मान लो x, और ये कितना बनेगा y। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है। सर परफेक्ट रेशियो तो 3/60 होनी चाहिए। 3 बाय, ओके सर, क्लियर सर। बेटे जो कम होगा वही तो, जो कम होगा वो खत्म हो गया ना जल्दी। यस सर। देखो हम लॉजिकली कर रहे हैं, हमको रट थोड़ी रखा हमने कोई तरीका, हम तो लॉजिकली कर रहे हैं भाई, ये खत्म हो गया है ना, तो इसके इतने मोल्स यूज हुए, तो इस परफेक्ट रेशियो क्या बनेगी, क्यों, क्योंकि रूल ये होता है कि जो परफेक्ट रेशियो में ये सारे इक्वल हो जाते हैं। आई बात समझ में। यस सर। तो इसके एक्स आई डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इसमें इक्वल नहीं होते इनिशियल रेशियो में, ये इनिशियल रेशियो में क्या है ये अनइक्वल, लेकिन यहां ये रेशियो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, ऐसे ये बात है। तो परफेक्ट सिनेरियो जो है कितना कितने के साथ मैच करेगा, परफेक्ट सिनेरियो मतलब यहां से रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, ये हो गया परफेक्ट सिनेरियो, जितना है सारा यूज होगा ये। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। तो परफेक्ट सिनेरियो में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कैलकुलेशंस मोल्स में ही चलेंगी, लेकिन पहले भी करके दिखाया था आपको। चलो, तो स्टूडेंट्स यहां तो बचेगा नहीं एक्स्ट्रा। अब ये x निकालो, x कितना आया, इतना इजी है आपके पास, x इज इक्वल टू 9/80। अरे 3 उधर गया, हाँ या ना। यस सर। और अब इसको मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, मॉलिक्यूलर मास से। कितना है मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास लिखा तो हुआ है 32, 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 8 से, 8 4 दा 32, 8 10 दा 80। अरे इससे आसान कैलकुलेशन क्या होंगी भाई, होंगी क्या कुछ, 36/10 3.6 ग्राम्स। ओके, तो x कितना आ गया 3.6 ग्राम, ग्राम्स आ गए ना, तो मोल्स तो 9/80 आ गए थे ना, ये तो हमने ग्राम निकाल दिया कि भाई इतना ग्राम हमें, ये था ना ऑक्सीजन 4.8 ग्राम, तो यूज कितना हुआ 3.6 ग्राम।
तो बच गया बाकी। या तो मोल से निकाल लो या फिर सीधा मास से निकाल लो माइनस करके। मोल से निकालोगे तो पहले मोल्स निकालो कितने बचे एक्स्ट्रा मोल्स, फिर उसको मल्टीप्लाई करो मास से, बात वही है। आप यहां से डायरेक्ट मास निकाल लो तो रेजिडुअल मास कितना बचा, कितना था आपको ऑक्सीजन कितना था 4.8 ग्राम्स माइनस 3.6 ग्राम्स, तो कितना बचा 1.2 ग्राम। तो ऑक्सीजन का रेजिडुअल मास आ गया आपके पास। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो मोल्स sir. मोल्स कितने बचे वो आप निकाल सकते हो। वो कितने आएंगे सर, इनिशियल थे 3/20 माइनस 9/80, इसको करोगे तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 माइनस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/80। ओके, और 3/80 को आप मोलर मास है 32, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी तो यही किया होगा आपने। तो इसको करोगे तो डायरेक्ट आपके पास 1.2 ग्राम आ जाएगा। तो चाहे Yes, sir. देखो आया नहीं आया, इसको करोगे Yes, sir. ठीक है. 4 और 10 और ये कितना आ गया 12/10, 12/10 इज 1.2 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स कहीं से भी कर लो बात तो वही रहेगी, कंसेप्ट आता है ना आपको तो। और वाई बताओ चलो मेरे को अब, वाई 12 ग्राम. वाई 2 उधर चला जाएगा, 3 to the 6/80, इतने मोल्स आ गए वाई के। 3/40. नहीं नहीं, ये 3 to the 6 होगा ना बेटे, हाँ सॉरी यस राइट 3/40। तो यहां से माइनस कर दो इसको, 2 से मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे कर दो सीधा, ठीक है ना, वो तो आप स्मार्ट हो। तो 3/60 या फिर तो सॉरी 3/40 मल्टीप्लाई। अब Fe2O3 का मोलर मास बताओ चलो। 160. 160 बिल्कुल ठीक है। ये देखो क्या मतलब मजेदार क्वेश्चन है, नहीं कहीं कैलकुलेशंस में दिक्कत आई आपको, बताओ मुझे। No, sir. No, sir. 12 ग्राम्स, तो बचा हुआ निकाल दिया 1.2 ग्राम। यूज कितना हुआ वो आपको पता लग गया, तो यूज कितना हुआ था 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम. तो करो ऐड 3.6 ग्राम ऑक्सीजन, और आयरन कितना यूज किया आपने, ये तो मोल्स दे रखे थे, तो मोल्स को अब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मोलिकुलर मास से, तो इसका मास पता लग जाए, निकाल लो मास। दूसरा तरीका भी है इसका मास निकालने का, 12 में से ये माइनस कर दो। क्या करो, अगला क्वेश्चन है आपको मैंने दे दिया मास ऑफ Fe यूज्ड, तो कितना आएगा 12 ग्राम माइनस 3.6 है ना भाई, ये 13 कहां से आ, ओके स्टूडेंट्स बन गई बात। Yes. तो कितना आया 8.4 ग्राम्स, निकाल लो यहां से 3/20 को करो मल्टीप्लाई, आयरन का कितना होता है 56, तो करो 56 से, बट 2 से ही कर दो तुम, इतना ही करो बस मेहरबानी। 28 और 10, 28 इंटू 3 7, 28 3 दा भाई 90 होता है ना, 30 इंटू 3 तो 6 कम कर दो 9, 84/10, तो आ गया ना 8.4 ग्राम्स। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आप यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, तो कौन से रूल से निकाला ये हमने, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां से निकालोगे तो भी यही आएगा, वहां से परफेक्ट सिनेरियो में से यूज करोगे तो परफेक्ट सिनेरियो में नंबर ऑफ मोल्स भी सारे यूज होंगे, और आपका परफेक्ट सिनेरियो का मतलब है mass of reactant is equals to mass of product, conservation of mass. Okay, Yes, sir. Yes, sir.
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप ये सब जो है अच्छे से समझ गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. कुछ कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. कम आया या ज्यादा आया कॉन्फिडेंस? अब तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस और करवा दूं? चलो तो कल करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आज तो सर होमवर्क से हो जाएगी, वो यही बोल रहा था सर। होमवर्क से हो जाएगी। Yes, ठीक है, तो अब जहां से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, yes, sir. करो प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, चलो, Okay, sir. थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. ओके। Thank you. Thank you, sir.